Literature has served as a mirror to society from ancient times. And today also, we can see that the literature serves as the mirror to the society to portray the pros and positives and cons, the negatives of the society through its work. Hello viewers, I am Jyoti Mishra. Welcome to 3E. Today I am here with the essay by Richard Steele, The Spectator Club. And in this essay, Steele employs light humor to portray the characteristics of his companions of the club and employed irony to define the absurdities of the society. These absurdities are mentioned through various aspects in the essay. Through this presentation, I am going to tell you about the 6 members of this spectator club apart from the narrator and what are their characteristics. So let's see what Richard Steele wants to tell us through this essay. In the Spectator Club, the narrator tells us about 6 members of the club. The first member of the club here is Sir Roger D. Coverley. The second one is a bachelor member of Inner Temple. The third one is a merchant named Sir Andrew Freeport. Fourth is Captain Sentry, and then a gallant Will Honeycomb. And last, not the least, is a clergyman. So these are the members which the author Richard Steele discuss in this essay, their traits, their behaviors in detail. So let's see all the members one by one. First one, Sir Roger D. Coverley. He was a man of extraordinary nature and had a good sense. उनका जो नेचर था, उनकी जो सेंस थी, वो बहुत अच्छी थी. He always found faults with the way of the world, but this never made him any enemies. हालांकि हर चीज़ में वो फॉल्स ढूंढते थे, गलतियाँ निकालते थे, बट उनके इस नेचर की वजह से कोई उनका दुश्मन नहीं बना था. He was a bachelor because he was disappointed in love of a beautiful widow. उनकी नेक्स्ट काउंटी में रहने वाली विडो से उसे प्यार होता है, लेकिन वो उसे वैल्यू नहीं देती है. एंड आफ्टर दिस डिसअपॉइंटमेंट उसका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है. बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट ही वॉज अ नॉर्मल हैप्पी यंग मैन, बट लेटर ही लॉस्ट ऑल हिज जोविलिटी एंड इंटरेस्ट इन सोशल लाइफ. तो होता ही है कि कुछ मिसहैपनिंग के बाद इंसान के नेचर में चेंज आती है, तो वही सेम सर रॉजर डी कोवरले के साथ भी हुआ था. अब जिस समय हम इनकी बात कर रहे हैं, ही इज़ 56 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो बहुत हेल एंड हार्टी हैं, मतलब इंजॉयबल पर्सन हैं, हैप्पी रहते हैं और हेल्थ वाइज भी वो अच्छे हैं. ही हैड सच अ गुड नेचर दैट पीपल लव्ड हिम. He also treated his servant well. अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर करते थे, लोगों के साथ उनका बिहेवियर अच्छा था कि लोग उनसे प्यार करते थे. He was a justice of the quorum and showed his spiritual abilities at quarter session. और being a judge, उनको उस quorum का जज बनाया गया था, और जब भी इस तरह का सेशन होता था तो वो अपनी जो लॉ की क्वालिटीज़ हैं, जुडिशियल क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ पर शो करते थे. तो ये मेन 7 पॉइंट्स हैं, 7 ट्रेट्स हैं सर रॉजर के, जो आपको ध्यान रखने वाले हैं इस ऐसे में जो डिस्क्राइब किया है. द नेक्स्ट मेंबर इज the member of Inner Temple. Just remember, students, that the name is not mentioned. The second person is not named. He is an unnamed bachelor. Our first member was also a bachelor, but he had a name. The
speaker or the narrator had given us the name that who the person was. Here only the word bachelor and he was the member of inner temple is used. So this member was a lawyer. लॉयर हैं और बहुत ही विटी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के पर्सन हैं ये जो हमारे सेकंड मेंबर हैं. ही चोज लॉ his occupation to obey the directions of his old father than to incline to his own tendencies. इसका सीधा सा असर है कि लॉ जो है उसका कोई खुद का चॉइस नहीं है बल्कि अपने फादर की डायरेक्शंस, अपने फादर की जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए बेमन उसने लॉ को चूज़ किया है अपने करियर के रूप में. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसके अपोजिट है. लॉ में जितनी सीरियसनेस चाहिए एंड ही इज़ सो इंटरेस्टेड इन ड्रामा एंड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म. तो वो फिलॉसफी पसंद करता है. फिलोसफर्स है एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस एंड डेमेस्ट्रीज, इन सब के बारे में जो नॉलेज अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिल पाती है वो उसको है. चाहे वो लिल्टन है या कोक है या लॉन्जाइनस है जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो वो उस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. लेकिन उसके फादर की ज़िद के लिए उन्होंने क्या किया है, लॉ को अपना करियर बना लिया. बट एक चीज़ और आती है कि उसके फादर बड़े स्मार्ट हैं. टाइम टाइम पर थोड़ा सा अपना कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भेजते रहते हैं कि मैं टेस्ट कर लूँ कि मेरा बेटा लॉ में कैसा कर रहा है. बट ये जो हमारा बैचलर है ये और भी ज़्यादा स्मार्ट है. इसने एक लॉयर को हायर किया है और उसके थ्रू वो सारे आंसर्स जो अपने फादर को भेजता रहता है. और ये इतना अच्छे क्रिटिक हैं, ही इज सच अ गुड क्रिटिक दैट इज प्रेजेंस एट द प्ले वुड राउज द एक्टर्स टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल. इनकी अपलॉज के लिए जो थिएटर उस टाइम बहुत फेमस था, हमारी तरह फिल्में नहीं चलती थी, तो थिएटर में जब इसकी प्रेजेंस होती थी, इस बैचलर की प्रेजेंस होती थी, तो स्टेज पे जो एक्टर्स प्रेजेंट होते थे वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे कि शायद हमें इस पर्सन से कोई फीडबैक मिले, पॉजिटिव फीडबैक मिले. तो ये इसके ट्रेड्स थे. ये 5 ट्रेड्स जो हैं ये बैचलर के हैं जो हमारा सेकेंड मेंबर है. थर्ड मेंबर सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो है एक मर्चेंट है. ही इज़ अ लेबोरियस बिजनेसमैन. बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास बिजनेस का. एंड उनकी ओपिनियन जो है वो क्या है, दैट डोमिनियन मे बी एक्सटेंडेड बाय आर्ट एंड इंडस्ट्री रादर दैन बाय पावर. तो वो यही कहते हैं कि आर्ट और इंडस्ट्री से जो डोमिनियंस आप अपने कंट्री की या स्टेट की एक्सटेंड करते हैं वो एक परमानेंसी के साथ आती है जो कि पावर से कभी नहीं की जा सकती. और एक यूनिक आर्ट ऑफ स्पीच है उसके अंदर एंड ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन. उनका बिलीफ है कि इंग्लैंड भी जैसे वो रिच हुए हैं अपने इन पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करके, तो इंग्लैंड भी अदर किंगडम से ज़्यादा रिच बन सकता है या बेनिफिटेड हो सकता है जैसे कि सर एंड्रयू हैं. और उनकी एक सेइंग है, वो खुद कहते हैं अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड. ये टिपिकल 4 पॉइंट्स हैं जो हमें सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट जो हमारे मेंबर हैं वो हैं कैप्टन सेंट्री. आर्मी से छोड़ के आए हुए पर्सन हैं और बहुत ही करेजियस हैं, इंटेलिजेंट पर्सन हैं और बहुत ही गुड अंडरस्टैंडिंग के पर्सन हैं. बहुत ब्रेवली इन्होंने फाइट किया, बहुत ब्रेवली ये अपनी ड्यूटी को करते थे. लेकिन उनको उनकी जो ब्रेवरी है, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रॉपर कंसिडरेशंस नहीं मिली, इसलिए उन्होंने आर्मी छोड़ दी. He says only that man could hold a position in military who gets over his false modesty. अब ये उनकी सोच है कि false modesty जो है उसको छोड़कर ही आप क्या है पोजीशन मेंटेन कर सकते हो. एक्चुअली क्या है, अपने हक के लिए लड़ना और चापलूसी करना उनको लगता है कि ये भी एक तरह की कावर्डाइज है, एक तरह का आप कह सकते हो कि नेगेटिव ट्रेट है जो उनको पसंद नहीं है. बहुत ही फ्रैंक थे वो अपनी बात कहने में और अपने जो ऑफिसर्स हैं या सीनियर्स हैं उनकी वीकनेस को
बताने में कभी उन्होंने हिचकिचाहट महसूस नहीं की, इसीलिए शायद उनको वो कंसिडरेशंस नहीं मिल पाई होंगी जो उनको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि लोग जो है, जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की ही आदी होते हैं। तो उनको अगर अपनी नेगेटिव ट्रेट्स बता दी जाए तो कुछ उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो एम्प्लॉई है या जो ये हमारा जूनियर है, ये काबिल ही नहीं है। And though he commanded many persons in military, he was never haughty, and he never became a flatterer, although he obeyed his superiors. ये दो traits जो हैं उनके क्या थे कि उन्होंने एज अ बीइंग अ ऑफिसर कभी प्राउड नहीं फील किया कि मैं ऑफिसर हूँ, आई विल जस्ट स्ले द अदर जूनियर्स और ऑल, बट फ्लैटरर भी वो कभी नहीं बने। अपने सीनियर्स को फ्लैटरी से नहीं, वो अपना काम करते थे, दिए हुए आदेशों को, जो ऑर्डर्स उनको मिलते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करते थे, बट ही नेवर फ्लैटर्ड द सीनियर्स। सो दीज वर द 7 traits ऑफ कैप्टन सेंट्री। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव अ गैलेंट विल हनीकॉम्ब, अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। हालांकि उनकी एज काफ़ी थी, बट ही वॉज स्टिल अट्रैक्टिव एंड ही कैन इम्प्रेस द फीमेल, ही कैन इम्प्रेस द वुमेन बाय हिज टॉक। बातों से बड़ा इम्प्रेस करते थे, स्पेशली वुमेन को। अच्छा ड्रेसअप करते थे और बहुत ही अच्छी नॉलेज थी उनकी विमेन फैशन के बारे में या फीमेल फैशन के बारे में, जो उस टाइम वोग में रही होगी। वोग एक फैशन मैगजीन थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट, बहुत फेमस मैगजीन रही होगी। तो उसकी सभी नॉलेज जो थी वो उनको थी, विल हनीकॉम्ब को। फीमेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको हिस्ट्री से या फ्यूचर में आने वाला क्या है वो सब बता सकते थे। तो ये उनका एक ट्रेट था। हमारा जो ऑथर हैं वो कहते हैं ही वॉज अ जेंटलमैन। अगर फीमेल्स को या विमेन रिलेशनशिप्स को छोड़ दिया जाए देन ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड वर्दी मैन। अगर फीमेल पार्ट को छोड़ दिया जाए उनके कैरेक्टरिस्टिक का, तो ही वॉज अ रियल जेंटलमैन। ये विल हनीकॉम्ब के ट्रेट्स थे या कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही सिंपल सॉबर पर्सन जो डिस्कस किया गया है, ही इज़ अ क्लर्जी मैन। ही लिव्ड अ सेक्रेट लाइफ, जैसा कि होता है, और ही वॉज अ फिलोसोफर, बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे। और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी दैट ही वॉज टू वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट ही वॉज फिजिकली वेरी वीक, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज अनेबल टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। और यही रीज़न रहा कि उनको चर्च में जो प्रमोशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो जब डिवाइन टॉपिक्स पे वेन एवर ही यूज टू टॉक अबाउट द डिवाइन थिंग्स और एस्थेटिक थिंग्स, ही ऑलवेज स्पोक विथ अथॉरिटी। जब वो डिवाइन चीज़ों के बारे में बात करते थे, गॉड के बारे में बात करते थे, रिलीजन के बारे में बात करते थे, उनकी अपनी अथॉरिटी थी। इट मीन्स ही हैड अ डीप rooted knowledge of his subject, and he was so good that he said, even after my death I wish that the world goes for the good. दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के लिए ही वो सोचते थे। तो students, these are our 6 characters discussed in the essay The Spectator Club by Richard Steele, and I've given you in this slideshow the crucial important traits of all the 6 characters discussed here. I hope you all have understood. Thank you.